Okay, peace be with you all. Yesterday we have read paragraph number 1, 2, 3, and 4 from noise in the environment. Today we are going to start paragraph number 5, right? Hope you have opened the books. Please take out paragraph number 5 and hold your pencils. First of all, you will listen the reading of this paragraph. Please pay attention on the correct pronunciation and the way the sentences are to be read, right? And after that, we're going to translate it and discuss the new words. Okay, paragraph number 5. The use of technology is another cause of noise pollution. For example, unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music systems and TV all become irritants from time to time. People usually do not switch off their mobiles or put them on silent mode when they enter offices, hospitals, schools and colleges. They also use electricity generators excessively in residential areas and put all other residents ill at ease. Moreover, listening to loud music or TV on a loud volume is another source of noise pollution. For this, people need to develop some civic responsibility so that others may not be in trouble because of their careless actions. Thank you, Rachel. Now look at the new words that you will come across in this paragraph. Unmonitored, unmonitored, बगैर निगरानी के. Irritant, irritant, परेशान कौन. Excessively, excessively, बेतहाशा. Civic, civic, शहरी. Careless, लापरवाही. Careless, लापरवाही. Okay, now paragraph number 5, we are going to translate this paragraph. Use of technology, technology का इस्तेमाल is another cause, एक दूसरी वजह है of noise pollution, शोर की आलूदगी की. Use of technology is another cause of noise pollution. Technology का इस्तेमाल, technology will translate it as technology. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी की एक और वजह है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अनमॉनिटर्ड यूज ऑफ मोबाइल फोन्स. अनमॉनिटर्ड बगैर निगरानी के. यूज इस्तेमाल ऑफ मोबाइल फोन्स का. मोबाइल फोन को मोबाइल फोन ही कहेंगे. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, बरकी जनरेटर या बिजली पैदा करने वाले जनरेटर या बिजली के जनरेटर्स. म्यूजिक सिस्टम, मौसीकी, एंड टीवी और टेलीविजन. ऑल बिकम इरिटेंट्स. इरिटेंट्स परेशानी का बायस बनते हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्तन फॉर वक्तन. टाइम टू टाइम, वक्तन फॉर वक्तन. Okay, hope words are clear. Now listen the translation. Use of technology is another cause of noise pollution. Technology का इस्तेमाल शोर की आलूदगी की एक और वजह है. For example, मिसाल के तौर पर, unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music system and TV. मिसाल के तौर पर मोबाइल फोन, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर या बरकी जनरेटर, मौसीकी और टेलीविजन का बगैर निगरानी के इस्तेमाल. all become irritants from time to time. सब वक्तन फवक्तन परेशानी का बाइस बनते हैं. all become तमाम बनते हैं. irritants परेशानी का, from time to time वक्तन फवक्तन. ये तमाम वक्तन फवक्तन परेशानी का बाइस बनते हैं. मिसाल के तौर पर मोबाइल फोन, बरकी जनरेटर, म्यूजिक और मौसीकी और टेलीविजन का बगैर निगरानी के इस्तेमाल वक्तन फवक्तन ये सब परेशानी का बाइस बनते हैं. People usually do not switch off their mobiles. People लोग
यूजुअली आमतौर पर डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स, अपने मोबाइल्स बंद नहीं करते. स्विच ऑफ बंद करना, मोबाइल्स अपने मोबाइल. एंड पुट देम ऑन साइलेंट मोड्स, और या पुट देम ऑन साइलेंट मोड्स, या उनकी आवाज बंद नहीं करते. साइलेंट मोड आवाज बंद कर देना, या उनकी आवाज बंद नहीं रखते. व्हेन जब दे एंटर वो दाखिल होते हैं ऑफिसेस दफातर में, हॉस्पिटल्स अस्पतालों में, स्कूलों और कॉलेजेस या कॉलेजों में. Okay, words are clear? People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes. लोग आमतौर पर अपने मोबाइल फोन्स बंद नहीं करते या उनकी आवाज बंद नहीं करते. When they enter offices, hospitals, schools and colleges, जब वो अपने दफातर, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होते हैं. तो बा मुहावरा आप करेंगे, लोग जब दफातर, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होते हैं तो वो अपने मोबाइल फोन बंद नहीं करते या उनकी आवाज बंद नहीं करते. They also use electricity generators. वो बिजली के जनरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं. एक्सेसिवली, बेतहाशा, मतलब बहुत ज्यादा. वो बिजली के जनरेटर का भी बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं. इन रेजिडेंशियल एरियाज, रिहायशी इलाकों में. एंड पुट अदर रेजिडेंट्स, और दूसरे रिहायशियों को इलेटीज बेचैन रखते हैं. इलेटीज बेचैन रखना, परेशान करना. They also use electricity generators excessively. वो बिजली के जनरेटर का भी बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं. इन रेजिडेंशियल एरियाज, रिहायशी इलाकों में. वो रिहायशी इलाकों में बिजली के जनरेटर का भी बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं. एंड पुट अदर्स रेजिडेंट्स इलेटीज, और दूसरे रिहायशियों को भी बेचैन रखते हैं या परेशान करते हैं. मोरओवर, मजीद बरा या इसी तरह से, listening to loud music, ऊंची आवाज में मौसीकी सुनना और टीवी या टेलीविजन. इसी तरह से ऊंची आवाज में मौसीकी या टेलीविजन सुनना, on a loud volume, या टेलीविजन ऊंची आवाज में सुनना, is another source of noise pollution. एक दूसरा सबब या जरिया है of noise pollution, शोर की आलूदगी का. इसी तरह से ऊंची आवाज में मौसीकी सुनना या टेलीविजन सुनना शोर की आलूदगी का एक दूसरा जरिया है. For this, इसलिए people need to develop some civic responsibility. लोगों को जरूरत है develop, पैदा करने की, some civic responsibility, शहरी, responsibility जिम्मेदारी. इसलिए लोगों को अपने अंदर शहरी जिम्मेदारी पैदा करने की जरूरत है. So that, ताकि others may not be in trouble, कि दूसरे तकलीफ में ना आए या दूसरे तकलीफ ना उठाएं. may not be in trouble, तकलीफ ना उठाएं. because of these careless actions, की वजह से, these in careless actions, लापरवाही के कामों से. actions mean आपके अफाल या काम, careless लापरवाही. For this, people need to develop some civic responsibility. इसलिए लोगों को अपने अंदर शहरी जिम्मेदारी पैदा करने की जरूरत है. So that others may not be in trouble because of these careless action, ताकि इन लापरवाही के अफाल या कामों की वजह से दूसरे लोग तकलीफ में ना आए या तकलीफ ना उठाएं. Hope it is clear. I'm going to revise it quickly. Just listen. Use of technology is another cause of noise pollution. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी की एक और वजह है. For example, मिसाल के तौर पर unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music systems and television और TV. मिसाल के तौर पर मोबाइल फोन, बिजली के जनरेटर, ऊंची मौसीकी और टेलीविजन का बगैर निगरानी के इस्तेमाल, all become irritants from time to time. ये सब वक्तन फवक्तन परेशानी का बाइस बनते हैं. People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. लोग जब
दफातर, हस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होते हैं तो वो आम तौर पर अपने मोबाइल फोन्स बंद नहीं करते या उनकी आवाज बंद नहीं करते। They also use electricity generators excessively. वो बिजली के जनरेटर का भी बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं रेजिडेंशियल एरियाज, रिहायशी इलाकों में, एंड पुट अदर रेजिडेंट्स इलेटीज, और दूसरे रिहायशियों को परेशान रखते हैं। Moreover, इसी तरह से listening to loud music और टीवी on a loud volume is another source of noise pollution. इसी तरह से ऊंची आवाज में मौसीकी सुनना या टेलीविजन को ऊंची आवाज में सुनना शोर की आलूदगी का एक और जरिया है। For this, इसलिए people need to develop some civic responsibility. लोगों को अपने अंदर शहरी जिम्मेदारी पैदा करनी चाहिए so that others may not be in trouble because of these careless actions. ताकि लोग इन लापरवाही के कामों की वजह से तकलीफ ना उठाएं। Hope it is clear? Okay, very good. Okay, thank you, Azal. Now come to paragraph number 6. Before we come to its new words and translation, I just want you to pay attention to its reading and listen the new words very carefully. Okay, listen paragraph number 6. Paragraph number 6. Noise pollution causes not only environmental damage, but it also has a negative impact on human health. It can cause aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression, and insomnia. Insomnia can further lead to anxiety, bad temper, and emotional stress. In addition, noise pollution can seriously affect the learners. This gives them unnecessary mental and physical tension. Thank you. Okay, now look at the new words that you will come across in this paragraph, paragraph number 6. Damage. Damage, नुकसान. Negative impact, मनफी असर. Negative impact, मनफी असर. Aggression. Aggression, गुस्सा या गुस्सीलापन. Aggression, गुस्सा और गुस्सीलापन. Hypertension, बुलंद फिशारे खून. Hypertension, ये जो BP हाई होता है, that is hypertension, and you can write it in Urdu, बुलंद फिशारे खून. बुलंद, ऊंचा, बुलंद फिशारे खून. फिशारे खून, fe, shin, alif, sha. I think it is written on the slide, you can see. High stress level, परेशानी की बुलंद सतह. High stress level, परेशानी की बुलंद सतह. Restlessness, बेचैनी. Restlessness, बेचैनी. Depression, अफसुर्दगी. Depression, अफसुर्दगी. Insomnia, insomnia, बेखाबी, नींद का ना आना. Insomnia, बेखाबी. Anxiety, परेशानी. Anxiety, परेशानी. Bad temper, बदमिजाजी. Bad temper, बदमिजाजी. Okay, hope words are clear. Okay, good. Now look at paragraph number 6. If words are clear, the translation will be very easy for you. Noise pollution causes not only environmental damage, noise pollution, शोर की आलूदगी, causes not only environmental damage, environmental माहौलियाती, you have read it earlier. Damage, नुकसान. शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती नुकसान का सबब बनती है, causes में सबब बनना, वजह बनना, बाइस होना. शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती नुकसान का बाइस बनती है, but it also has a negative impact, बल्कि इसका मनफी असर होता है on human health, इंसानी सेहत पर. शोर की आलूदगी ना सिर्फ
माहौलियाती नुकसान का सबब बनती है, बल्कि इसका इंसानी सेहत पर भी मनफी असर होता है, या ये इंसानी सेहत पर भी मनफी असर डालती है। इट कैन कॉज ये सबब बन सकती है aggression, गुस्सीलापन, like when you become very irritant and you just like started to have angry on little things, that is aggression. गुस्सीलापन या गुस्सा। हाइपरटेंशन, बुलंद फिशारे खून, हाइपरटेंशन बुलंद फिशारे खून, हाई स्ट्रेस लेवल, परेशानी की बुलंद सतह। हेयरिंग लॉस, समात का खात्मा, समात होता है सुनना, का खात्मा। हेयरिंग लॉस व्हेन यू आर अनएबल टू लिसन। हेयरिंग लॉस, समात का खात्मा। रेस्टलेसनेस, बेचैनी, डिप्रेशन, अफसुर्दगी, एंड इंसोम्निया और बेख्वाबी। Okay, going to repeat. Noise pollution causes not only environmental damage, but it also has a negative impact on human health. शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती नुकसान का बाइस बनती है, बल्कि ये इंसानी सेहत पर भी मनफी असर डालती है। It can cause aggression, hypertension, high stress level, hearing loss, restlessness, depression, and insomnia. ये गुस्सीलापन या गुस्से, बुलंद फिशारे खून, परेशानी की बुलंद सतह, समात का खात्मा, बेचैनी, अफसुर्दगी और बेख्वाबी की वजह बन सकती है। Insomnia can further lead to anxiety. Insomnia, बेख्वाबी, can further मजीद, lead to anxiety. Lead होता है ले जाना, right? Take something towards some direction. Lead ले जाना, to anxiety, परेशानी, bad temper, बदमिजाजी, and emotional stress और जज्बाती दबाव। Emotional जज्बाती, stress दबाव। Insomnia can further lead to anxiety, bad temper, and emotional stress. बेख्वाबी मजीद परेशानी, बदमिजाजी और जज्बाती दबाव की तरफ ले जाती है। In addition, इसके अलावा या मजीद बरा, इसके अलावा noise pollution can seriously affect the learners. Noise pollution, शोर की आलूदगी, can seriously शदीद, affect मुतासिर कर सकती है the learners, तुलबा को। इसके अलावा शोर की आलूदगी तुलबा को शदीद मुतासिर कर सकती है। This gives them, ये उनको देती है unnecessary गैर जरूरी, mental and physical tension, mental ज़हनी, physical जिस्मानी, tension तनाव, ये उनको गैर जरूरी ज़हनी और जिस्मानी तनाव देती है। Okay, hope it is clear. Okay, listen, a quick translation again. Noise pollution causes not only environmental damage, but it also has a negative impact on human health. शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती नुकसान का सबब बनती है, बल्कि ये इंसानी सेहत पर भी मनफी असर डालती है। It can cause aggression, hypertension, high stress level, hearing loss, restlessness, depression, and insomnia. ये गुस्से, बुलंद फिशारे खून, बुलंद परेशानी की बुलंद सतह, समात के खात्मे, बेचैनी, अफसुर्दगी और बेख्वाबी की वजह बन सकती है। Insomnia can further lead to anxiety, bad temper, and emotional stress. बेख्वाबी मजीद परेशानी, बदमिजाजी और जज्बाती दबाव की तरफ ले जाती है। In addition, इसके अलावा noise pollution can seriously affect the learners. शोर की आलूदगी, in addition, इसके अलावा noise pollution can seriously affect the learner. शोर की आलूदगी तलबा को भी शदीद मुतासिर करती है। This gives them unnecessary mental and physical tension. ये उनको गैर जरूरी ज़हनी और जिस्मानी तनाव देती है। Okay, hope it is clear. Good. Now we are going to read and listen paragraph number 7. Okay, open paragraph number 7 and pay attention on paragraph number 7. Paragraph number 7. In Pakistan,
there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources. The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels. For example, the Punjab Environment Protection Agency recommends about 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. These figures must be strictly enforced by the government. Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise-emitting vehicles from roads, use noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. Also, the residential societies should come forward, frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise-producing agents. Offices, hospitals, and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones on campuses for better noise management. Moreover, people should be discouraged from speaking loudly in these areas. Okay. Thank you, Richa. Okay, now look at the new words that you will come across in this paragraph. Paragraph number 7. अशद जरूरत, dire need, असद जरूरत. Utilize ब्रोय कर लाना, इस्तेमाल करना. Recommend तजवीज़ करना. Figures अदादो शुमार. Figures अदादो शुमार. Enforce लागू करना या अमल दरामद करना. Barrier रुकावटें. Expedite तेज करना. Prohibit मुमानियत, मना करना. Prohibit मुमानियत या मना करना. Okay, this paragraph is a bit long, but most of the words you have already read in previous paragraphs, so it won't be very difficult for you. In Pakistan में, there is a dire need to bring down the noise level. There is a dire need, शदीद ज़रूरत है. To bring down, कम करने की. Bring down, कम करना. The noise level, शोर की सतह को. पाकिस्तान में शोर की सतह को कम करने की शदीद या अशद ज़रूरत है. Coming from different sources, मुख्तलिफ ज़राए से आने वाली. आने वाली different मुख्तलिफ sources ज़राए. पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से आने वाले शोर को कम करने की अशद ज़रूरत है. The government must gear up. हुकूमत को चाहिए. Gear up means कि वो ready रहे, तैयार रहे या ज़राए बढ़ाए. And utilize और इस्तेमाल करे various means, मुख्तलिफ ज़राए to control, काबू करने के लिए unwarranted noise levels. Unwarranted noise level, बेजा शोर की सतह या गैर जरूरी शोर की सतह. Words are clear? Unwarranted noise level, गैर जरूरी शोर की सतह. Okay, the government must gear up and utilize various means to control unwarranted levels. हुकूमत को तैयार होना चाहिए, मतलब government should act on that, right? It should be ready that they have to act upon this and they have to bring that level down. That he want to say in this sentence. The government must gear up. हुकूमत को इसके लिए तैयार होना चाहिए and utilize various means to control unwarranted noise level.
और गैर ज़रूरी शोर की सतह को काबू करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए, यूटिलाइज इस्तेमाल करने चाहिए। वेरियस मीन मुख्तलिफ ज़राए टू कंट्रोल काबू करने के लिए अनवांटेड नॉइस लेवल, गैर ज़रूरी शोर की सतह। हुकूमत को तैयार होना चाहिए और गैर ज़रूरी शोर की सतह को काबू करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए। ओके, इट्स क्लियर, फाइन। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, the Punjab Environmental Protection Agency recommends around 55 decibel of noise level in residential colonies. से माहौलियात पंजाब रिकमेंड्स ने तजवीज़ किया है अराउंड 55 डेसिबल ऑफ नॉइस लेवल शोर की सतह इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज रिहायशी इलाकों में। मिसाल के तौर पर महकमा तहफ़्ज़े माहौलियात पंजाब रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल and 75 decibels और 75 डेसिबल इन कमर्शियल एरियाज कारोबारी इलाके, रेजिडेंशियल एरियाज रिहायशी इलाके एंड कमर्शियल एरियाज कारोबारी इलाके। मिसाल के तौर पर महकमा तहफ़्ज़े माहौलियात पंजाब रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल और कारोबारी इलाकों में 75 डेसिबल तजवीज़ करता है शोर का लेवल, राइट, शोर का लेवल तजवीज़ करता है। दोबारा से कर देती हूँ। मिसाल के तौर पर महकमा तहफ़्ज़े माहौलियात पंजाब रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल और कारोबारी इलाकों में 75 डेसिबल शोर की सतह तजवीज़ करता है। These figures ये इन अदादो शुमार पर must be strictly सख्ती से enforced अमल दरामद करवाना चाहिए या लागू करवाना चाहिए बाद गवर्नमेंट हुकूमत को इन अदादो शुमार पर सख्ती से अमल करवाना चाहिए। like they should bring that level to these numbers. These figures must be strictly enforced by the government. हुकूमत को इन अदादो शुमार पर सख्ती से अमल दरामद करवाना चाहिए। Furthermore, इसके अलावा the government should ensure smooth traffic flow. Furthermore, इसके अलावा the government हुकूमत को ensure यकीनी बनाना चाहिए smooth traffic flow, ट्रैफिक का बाकायदा बहाव, राइट, स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक का बाकायदा बहाव। इसके अलावा हुकूमत को ट्रैफिक का बाकायदा बहाव यकीनी बनाना चाहिए। नॉइस एमिटिंग व्हीकल्स फ्रॉम रोड, ब्लॉक बंद कर देनी चाहिए। नॉइस एमिटिंग शोर पैदा करने वाली गाड़ियां फ्रॉम रोड, सड़कों से। इसके अलावा सड़कों पर शोर करने वाली गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए। यूज नॉइज बैरियर्स where necessary, जहां जरूरी हो यूज नॉइज बैरियर, शोर की रुकावटें लगानी चाहिए। नॉइज बैरियर, शोर की रुकावटें, जहां जरूरी हो वहां पर अगेन। फर्दरमोर, इसके अलावा द गवर्नमेंट शुड एंश्योर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, हुकूमत को ट्रैफिक के बाकायदा बहाव को यकीनी बनाना चाहिए। ब्लॉक नॉइस मीटिंग व्हीकल्स फ्रॉम द रोड, सड़कों पर शोर करने वाली गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए। यूज नॉइज बैरियर्स वेयर नेसेसरी, और जहां जरूरी हो शोर की रुकावटें इस्तेमाल करनी चाहिए। एंड एक्सपीडाइट कंस्ट्रक्शन वर्क, एक्सपीडाइट तेज कर देना चाहिए। कंस्ट्रक्शन वर्क, तामीरी काम या तामीराती काम, और तामीराती काम को तेज करना चाहिए टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी को कम से कम के लिए। Okay, I'm going to read it again. Translation. Listen very carefully. इसके अलावा हुकूमत को सड़कों पर शोर करने वाली गाड़ियों इसके अलावा हुकूमत को ट्रैफिक के बाकायदा बहाव को यकीनी बनाना चाहिए। सड़कों पर शोर करने वाली गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए। जहां जरूरी हो शोर की रुकावटें इस्तेमाल करनी चाहिए, और शोर की आलूदगी को कम से कम करने के लिए तामीराती काम की रफ्तार तेज करनी चाहिए।
Also the residential societies should come forward. इसके अलावा रिहायशी रेजिडेंशियल रिहायशी सोसाइटियों को या इलाकों को शुड कम फॉरवर्ड, आगे आना चाहिए. इसके अलावा रिहायशी सोसाइटियों को भी आगे आना चाहिए. फ्रेम एंड एनफोर्स रूल्स, फ्रेम एंड एनफोर्स रूल्स, फ्रेम बनाने चाहिए एंड एनफोर्स रूल्स, और कवानीन पर अमल करवाना चाहिए इन देयर एरियाज, अपने इलाकों में. टू चेक रोकने के लिए. अननेसेसरी नॉइस, गैर जरूरी शोर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, गैर जरूरी शोर करने वाली चीजों को, गैर जरूरी चीजों को. दोबारा से देखें. ऑल्सो द रेजिडेंशियल सोसाइटीज रिहायशी सोसाइटियों को कम फॉरवर्ड, आगे आना चाहिए. फ्रेम एंड एनफोर्स रूल्स, कवानीन बनाने और उन पर अमल करवाना चाहिए इन देयर एरियाज, अपने इलाकों में. अपने इलाकों में कवानीन बनाने और उन पर अमल करवाने के लिए रिहायशी सोसाइटियों को आगे आना चाहिए. टू चेक अननेसेसरी नॉइज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, और गैर जरूरी शोर पैदा करने वाली चीजों को रोकने के लिए. वर्ड्स आर क्लियर? नाउ लिसन इट्स बाब मुहावरा ट्रांसलेशन. इसके अलावा रिहायशी सोसाइटियों को भी अपने इलाके के लिए कवानीन बनाने और उन पर अमल करना चाहिए. गैर जरूरी शोर पैदा करने वाली चीजों को रोकने के लिए और आगे आना चाहिए. या आप इस तरह से कर सकते हैं. रिहायशी सोसाइटियों को भी अपने इलाकों में शोर पैदा करने वाली गैर जरूरी चीजों को रोकने, कवानीन बनाने और उन पर अमल करने के लिए आगे आना चाहिए. मतलब जो रिहायशी सोसाइटी है उनको 3 काम करने चाहिए. कौन कौन से? पहला के लास्ट लाइन में टू चेक अननेसेसरी नॉइज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, कि रिहायशी सोसाइटियों को अपने इलाकों में शोर पैदा करने वाली गैर जरूरी चीजों को रोकने. दूसरा काम फ्रेम एंड एनफोर्स रूल्स, कवानीन बनाने और उन पर अमल करवाने के लिए क्या करना चाहिए? कम फॉरवर्ड, आगे आना चाहिए. दैट्स क्लियर? रिहायशी सोसाइटियों को भी अपने इलाकों में शोर पैदा करने वाली गैर जरूरी चीजों को रोकने, कवानीन बनाने और उन पर अमल करवाने के लिए आगे आना चाहिए. ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, दफातर, हस्पताल और तालीमी इदारों, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, तालीमी इदारों को शुड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट द यूज ऑफ मोबाइल फोन, शुड स्ट्रिक्टली, सख्ती से, प्रोहिबिट, मना कर देना चाहिए, द यूज ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का इस्तेमाल. ऑन कैंपसेस, अपने हयातों में, हयाता अलिफ है अलिफात तोए वाओ और नून गुना, अपने हयातों में. फॉर बेटर नॉइस मैनेजमेंट, शोर को बेहतर अंदाज में संभालने के लिए या शोर के बेहतर अंदाज में इंतजाम के लिए. Offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones on campuses for better noise management. दफातर, हस्पतालों और तालीमी इदारों को शोर के बेहतर इंतजाम के लिए अपने हयातों में, मतलब अपने इन देयर ओन एरियाज, अपने हयातों में मोबाइल फोन का सख्ती से मना कर देना चाहिए या सख्ती से मुमानियत करनी चाहिए. Moreover, इसके अलावा people should be discouraged to speak loudly in these areas. People should be discouraged, लोगों को की हौसला शिकनी करनी चाहिए. Discouraged, हौसला शिकनी करना. To speak loudly, ऊंचा बोलने के लिए in these areas, इन इलाकों में. इसके अलावा लोगों को इन एरियाज में या इन इलाकों में ऊंचा बोलने की भी हौसला शिकनी करनी चाहिए. Hope it is clear. Okay, don't worry, just go through this paragraph again, and if you come across any difficulty, do let me know. Right? Tomorrow I will repeat this paragraph first, paragraph number 7. I will repeat it quickly, and then we are going to read paragraph number 8. Your home task is that you have to go through paragraph number 5 and 6 properly and read paragraph number 7 again. And if you come across any difficulty, do let me know tomorrow, and we are going to repeat paragraph number 7, and we are going to read paragraph number 8 along with its comprehension. This is all for today. Okay, students, God bless you. Thank you so much.